Assalamu alaikum and a very good day, ladies and gentlemen. Thank you for watching us here on ITU's official channel. As always, we try our best to bring to you people who are experts, leaders in their respective fields, so they can, take out some time of their busy lives and share with us the knowledge that they have gained through their very rich and vast experiences. So I could learn a little from them, and obviously, all our youngsters, all our dear students could learn something from their experiences as well. So, continuing that particular tradition, today we'll be introducing to you a very special guest, a guest I believe we are lucky to have here with us in the studio today because he brings a combination of, I believe, two skills or two particular experiences, skill set that make the perfect combination for a successful person in today's world. This is 2025. We have technology advancements coming in every minute, or I think every second of the day. And with that, if you have knowledge of information technology, you have education, that supports cybersecurity, you have command over technology, and plus, if you have entrepreneurial skills, then we definitely want to talk to you. And that is why, ladies and gentlemen, today we're talking to Mr. Salman Mushtaq. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. How are you doing? I'm good. Thank you very much for taking out time for Information Technology University. Like I was just telling our audience members, it's not only a pleasure, it's an honor having you here with us today. Yeah, actually, pleasure is mine, and I am thankful to ITU because giving me this opportunity, coming here and share my knowledge and experience of all these years that I have been through and how the new generation and our youth they can learn from it. Definitely, sir. That's exactly what our goal is, and that is what we're looking forward to. Mr. Salman Mushtaq is a well-known name in the IT industry, but for those of you who'd be watching him today for the first time, I would like to introduce to you Mr. Salman Mushtaq, somebody with 20 years of a vast and varied experiences worldwide in different industries. He served in multiple capacities, including leadership roles as well. And today, what I would be focusing on is not only his experience, his knowledge in the cybersecurity domain, but also his, experiences as an entrepreneur. He's the co-founder and the CEO for Miral Cybersecurity. So, we'd be starting right away with our questions, sir. Cybersecurity is a word that I think here at IT University we hear almost every other day. Yeah. So it's a term most of our staff, faculty members and students are already familiar with. I'm a lay person, मगर कुछ basics कहीं ना कहीं मैं भी ज़रूर इसकी understand करती हूँ. But obviously, since we're going on a platform as huge as YouTube and Facebook and Instagram and all of these social media platforms, I would like that we or you explain it to them in very simple layman words कि साइबर सिक्योरिटी एक लफ्ज़ जो अब तो हम न्यूज़ चैनल्स पर भी बहुत सुनते हैं एग्जैक्टली है क्या? देखें, बेसिकली अगर आप इसे देखेंगी, इसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल मैं दूंगा दैट इज़ कोविड. एब्सोल्युटली. ठीक है, कोविड ने हमारी दुनिया बदल दी. बिफोर कोविड नोबडी हैव इमेजिन दैट आप घर से काम कर सकते हैं और फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. कंपनीज़ में ये पॉलिसी नहीं थी, वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी नहीं थी. ठीक है, अब जो है बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं उनकी मिनिमम जो पॉलिसी है उनके एम्प्लॉयज़ के लिए वो 60 to 90 days है इन अ ईयर, which is a big number. Working from home. Yeah, big change. Also many companies now they are relying on the remote jobs. So उसमें आप अगर देखेंगे लोग जो है वो कभी अपने ऑफिस में गए ही नहीं. तो इसका सारा जो मतलब जब कोई चीज़ अल्लाह की तरफ से आती है, हम पे कोई मुसीबत आती है तो उसके अंदर खैर होती है. ठीक है ना, तो वो हमारे लिए एक लर्निंग होती है. तो कोविड ने हमारा जो परसेप्शन था, जो हमारी सोच थी उसको बदल दिया. ठीक है, अब उसके साथ हुआ क्या? उसके साथ ये हुआ कि कोविड से पहले आप अगर ऑनलाइन किसी स्टोर पर जाती भी थी, इफ़ यू वांट टू बाय समथिंग, तो सबसे बड़ा सवाल आता था ट्रस्ट का. हाउ वी आर गोइंग टू ट्रस्ट दैट पोर्टल और दैट वेबसाइट कि अगर हम वहाँ पे अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, वी यूज़ अवर क्रेडिट कार्ड, तो इज़ इट सिक्योर? ठीक है, तो कोविड के बाद हमें बहुत तेज़ी से इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई कि हमने हर चीज़ को ऑनलाइन लेकर जाना है. डिजिटलाइजेशन. My most of the work experience is from KSA. So in KSA, in this small span of time, there was a huge transformation. They created a lot of new applications
ओके। इवन अगर आप कहीं जा रहे हैं और इफ़ यू वांट टू नो, अगर आपके सराउंडिंग में कोई ऐसा शख्स है जो कोविड से इन्फेक्टेड है, राइट। तो आपकी एप्लीकेशन जो है आपको अलर्ट देती है, ओह, ठीक है excellent. जी। अब ये सारी चीज़ें तो आपकी ऑनलाइन चली गई, बिल्कुल। लेकिन उसके साथ एक ख़तरा भी आ गया, ठीक है, बेशक। कि ये आपकी चीज़ें सिक्योर कैसे होंगी। हम इसको अपनी नॉर्मल ज़िंदगी से लेते हैं। आप अपना घर बनाते हैं, तो घर बनाने के बाद आप उसकी असेसमेंट करते हैं कि आपके सराउंडिंग में जो इन्वायरमेंट है वो कैसी है, सिक्योर नहीं है। उसके अकॉर्डिंगली आप खिड़कियाँ, दरवाजे, फेंसेस, हर चीज़ आप उसके घरों के लिए लगाते हैं। इवन आप सिक्योरिटी गार्ड भी रखते हैं, True. ठीक है, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी, आपके जो अजीज़ व अयाल हैं, आपकी फैमिली है, आपकी सराउंडिंग है, यू वांट टू सिक्योर देम। And security gives you a certain peace of mind that nothing else will. डेफिनेटली तो आप दूसरी चीज़ों पे फोकस करते हैं, True. ठीक है ना। अब जब आप डिजिटल लाइफ में चले गए, ठीक है, तो वहाँ पे अब आप जो है ना, आपके सिस्टम्स इन्वॉल्व हो गए, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मशीन्स, ठीक है। उसके अलावा फिर आपके जो लोग हैं इटसेल्फ, क्योंकि सिक्योरिटी ये सिर्फ सिस्टम्स की बात नहीं है, लोगों की बात भी है। बेशक। जिन लोगों ने उसको ऑपरेट करना है, उनको भी आपने बताना है कि आपने कैसे सिक्योर होना है, बिल्कुल। ठीक है। अब उसके साथ साथ जो, जैसे अगर आम ज़िंदगी में आपको थ्रेट्स होती हैं, इसी तरह जब आप साइबर स्पेस में जाते हैं, साइबर का लफ्ज़ बेसिकली यूज़ होता है जब आप इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है, सही। जब आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, Right. ठीक है ना, तो उसको हम साइबर कहते हैं, ठीक है। ठीक। इसकी ब्रॉडर एक टर्म है जिसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है वो ये आपकी पूरी जो इंटरप्राइज़ है, पूरी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसके ऊपर अप्लाई होती है। ओह, साइबर के अंदर आप फिजिकल सिक्योरिटी को नहीं देखते कि right. अगर कोई शख्स आपकी बिल्डिंग में एंटर हो रहा है, दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी। Okay. इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कवर करती है उसे, Okay, right. ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है। नॉर्मली हम इसको इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, साइबर और इन्फॉर्मेशन, बट But देयर इज अ डिफरेंस। information security is a broader Broader term. term. Cyber उसको थोड़ा सा लिमिट या नैरो डाउन कर। साइबर स्पेसिफिकली इज रिलेटेड टू व्हेन योर सिस्टम्स आर इंटरकनेक्टेड, राइट। ठीक है। जब आप कोई डिजिटली कोई भी आप काम कर रहे हैं ना, तो साइबर उसके ऊपर फोकस करती है। ठीक। तो ये एक मेन डिफरेंस है। राइट। अब साइबर सिक्योरिटी में हम कर कह रहे हैं, जो आपकी साइबर स्पेस है विच इज़ द इंटरनेट, ठीक है ना, उसको सिक्योर करना है। बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने अपने घर को सिक्योर किया है बाय हैविंग विंडोज़, बाय हैविंग डोर्स, बाय हैविंग फेंसेस, सिमिलरली यू नीड टू सिक्योर योर साइबर स्पेस। बिल्कुल, क्योंकि एक आपकी जिस तरह फिजिकल प्रेजेंस दुनिया में है, यू नो, यूर अ पर्सन, यूर मिस्टर सलमान मुश्ताक कुरैशी, यू लिव इन अ सर्टेन रेजिडेंस एटसेट्रा। अब ऑब्वियसली एवरीबडी हैज अ सर्टेन प्रेजेंस इन द साइबर वर्ल्ड इज वेल। cyber world, आप yes. उधर किस तरह एग्जिस्ट करते हैं, क्या आपका प्रोफाइल है, क्या क्रेडेंशियल्स उधर मौजूद हैं, क्या आपका डेटा उधर मौजूद Exactly. है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू सिक्योर योर साइबर प्रेजेंस। एग्जैक्टली। अब देखें ना, जैसे फेसबुक का जब लॉन्च हुआ, ठीक है, तो इनिशियली उसको बहुत कम लोगों ने अडॉप्ट किया। अब आप देखें हर कोई उसको यूज़ करता है, ठीक है, एंड इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म। मैंने ग्रेजुएशन जो है वे बैक इन समवेयर अराउंड 2004 में की थी, ठीक है। तो मेरे जो कॉलेज के दोस्त थे या स्कूल के दोस्त थे, एंड आई वेंट अब्रॉड, तो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड देम, मेरे पास उनका नंबर नहीं था। तो फेसबुक इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म, लेकिन अब उसके साथ चैलेंजेस क्या आते हैं। अब साइबर सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है, मैं आपको अपना एक वाक़या बताता हूँ कि वन ऑफ माई फ्रेंड ही कॉन्टेक्टेड मी ऑन फेसबुक मैसेंजर, और उसका मैसेज मुझे आया कि जी मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ, अम्मी बीमार हैं, ठीक है, और मुझे जो है ना अर्जेंटली 1 लाख रुपए चाहिए, ठीक है, तो कैन यू हेल्प मी, कैन यू सेंड मी दिस अमाउंट और मनी। तो अब मैसेज मेरे दोस्त के प्रोफाइल से आया है, ठीक है। अब अगर मैं साइबर सिक्योरिटी के फील्ड से ना होता तो शायद मैं उसकी बात पे यकीन कर लेता, और बहुत बहुत सारे हमारी फैमिली में ऐसे लोग हैं जिन्होंने पैसे भेजे हैं ऐसे लोगों को, ठीक है। तो द फर्स्ट थिंग व्हाट आई डिड, जब उसका मैसेज आया, तो वो मेरा दोस्त भी मेरे साथ KSA में होता है, तो फर्स्ट थिंग आई डिड, आई ट्राई टू कॉल हिम, ठीक है, और मैंने उसको कॉल करके पूछा कि क्या हुआ, खैर है, तुम्हारी तरफ से मैसेज आया, तुम्हारी वालदा बीमार है। कहते नहीं, मैं तो सऊदीया में ही हूँ। मैं कहा इट्स फाइन। फिर अब क्योंकि बीइंग सिक्योरिटी प्रोफेशनल, आई ट्राई टू चेक विद दैट गाई, तो मैंने उसका वैसे थोड़ी सी कन्वर्सेशन स्टार्ट की टू अंडरस्टैंड कि उसका मोटिव क्या है। जब थोड़ी देर मैंने उसको पुश किया, मैंने कहा कि अच्छा ये बताओ कि तुम कहाँ हो, तो उसने मुझे कोई एक फ़र्ज़ी सा नाम बताया लाहौर का। मैंने कहा अच्छा तुम मुझे अपना लोकल नंबर दो, तो मैं भाई से कहता हूँ, वो आता है वहाँ तुम्हें पैसे देता है, ठीक है। मैं उसको ये भी नहीं बताना चाह रहा कि मैंने पता कर लिया, लेकिन बट आई वांट टू यानी चेक कि वो कितनी दे सकते। जब मैंने उसको कहा कि ठीक है भाई आके तुम्हें पैसे देता है, देन ही जो है वो डिसअपीयर, यस एग्जैक्टली। और इस तरह के देखें आपके साथ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वाक़यात होंगे, ठीक है। नाउ इफ़ वी ओनली फोकस ऑन सिस्टम्स, इफ़ वी ओनली फोकस ऑन नेटवर्क्स, इफ़ वी ओनली फोकस ऑन सॉफ्टवेयर, सो व्हाट अबाउट द पीपल पार्ट?
Absolutely, you have to cover that. ठीक है. तो the very even in cyber security there's a saying that the most weakest link in cyber security is human. Human part, because Okay. obviously even in this ये जो आपने एक incident अपना बताया, it sort of took a hit at your emotional self Exactly, ना, कि my exactly, mother exactly, and my yes. mother is not feeling well, Yes, she's in the hospital. yes. ये एक ऐसी बात है कि सब हम सुनकर ना 2 सेकंड को दिल को हाथ पड़ता है कि अच्छा नहीं, बिल्कुल. we should help this person right away. तो वही बात है कि हमारे सेंटिमेंट्स को या इमोशंस को वहाँ पर यूज किया जाता है इन अ वे, जी. एंड दैट आल्सो लाइक यू सेड इज द वीकेस्ट लिंक. Exactly. So there are a lot of similar cases. I think you must have received some SMS from Benazir Income Support, from some universities that you have got this. Acha, because I work in the academics office here at ITU, we often receive such calls from parents who are very worried कि हमारे बेटे का फ़ोन ऑफ है, बेटी का फ़ोन ऑफ है, हम इस तरह की कॉल रिसीव, कैन यू प्लीज़ चेक इफ देयर इन द क्लासरूम. जी. एंड इट इज़ सो स्मार्टली टाइम्ड कि उस वक्त वो बच्चा एग्जाम दे रहा होता है. जी. तो ऑब्वियसली फ़ोन्स ऑफ होते हैं, फ़ोन्स बाहर होते हैं, दे डोंट हैव एक्सेस टू देम, और हमें अक्सर फिजिकली इन पर्सन जाके चेक करना पड़ता है, एंड देन वी कॉल द पेरेंट्स बैक कि नहीं, योर चाइल्ड इज़ हियर. जी. तो ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली जहाँ तरक्की के, टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के बेशुमार फ़वाइद हैं, हम शायद लिस्ट डाउन भी एक एपिसोड में उसको ना कर सकें, साथ ये एक फ्रॉड या स्कैम का एलिमेंट है जो अनफॉर्चुनेटली जिस तरह एडवांसमेंट होती है आईटी में, टेक्नोलॉजी में, उसी तरह इन चीज़ों में भी कहीं ना कहीं एडवांसमेंट हो रही है. डेफिनेटली. देखें, the most important thing is that we as a security professionals, we have limitations, because when we go to any organization and we test their security, we have certain protocols to follow. True. We cannot just blindly attack. Exactly. We cannot you just have your directly ethics, assess. you have your values. Yes. Other related than to that, we have to technology. make sure that because if the client, if they have production environment, okay, where they have live servers, we cannot test them during daytime. So we have to wait for the weekends. We have to wait when there is a less utilization of those servers. Whereas the attackers, they don't have any boundaries. Exactly. They can attack whenever they want to attack. So no one is stopping them. Also, we need to be careful which tool we will be using to assess the environment. They don't have any limitations. Absolutely. Okay. So for this perspective, we need to work in different areas. Okay. And where usually we call it people, process and technology. So when we work on cybersecurity, these 3 areas that we look after. So उसके अंदर लोगों की अवेयरनेस, उनको बताना, उनको ये चीज़ समझाना, क्योंकि देखें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नॉट एवरी वन इज़ अ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल, Absolutely. इवन नॉट एवरी वन इज़ अ IT प्रोफेशनल. True. Maybe someone working in HR, okay, he just use the system only for small tasks, that all. बिल्कुल, Okay. बिल्कुल. यहाँ उसकी बहुत ज़्यादा अगर एक्सपर्टीज़ होगी तो MS ऑफिस में होगी, वर्ड में, एक्सेल में. या सर अब हमें इतनी ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म्स मिल जाते हैं, जी. लाइक वी आर यूजिंग CMS. अब मेरा बहुत काम CMS में होता है, जी. बट एक यूज़र एक्सपीरियंस है, एंड सिंस इट्स अ वेरी यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस और बड़ा इजी है, मैं उस पर बहुत इजीली काम कर लेती हूँ. बट देन अगेन व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग द डायनामिक्स ऑफ हाउ दिस कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम इज वर्किंग, आई नो वेरी लिटिल. Yes, exactly. तो एज अ यूज़र हम इंजॉय करते हैं उस चीज़ को, मगर उसकी समझ वाकई बहुत कम रखते जी. हैं. अब देखिए, इसमें सबसे जो आज के दौर में ज़्यादा ख़तरात हैं वो एक एंड यूज़र को हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपने भी बताया कि यू यूज़ CMS. सो इमेजिन इफ़ यू रिसीव एन ईमेल फ्रॉम योर IT एडमिनिस्ट्रेटर, ओके, with a very refined message that your CMS password is going to expire after 3 days and you need to update your password, and there's a link also in the email. Okay. Now for a normal person, you don't have this capability to differentiate whether this would happen or not. whether this email is coming from your IT admin or from a hacker. Exactly. Okay. And by human nature, I think we're all a bit pessimistic and we Exactly. panic very quickly. Exactly. So And I would panic. Oh my God, my password expiring. How am I going to work? So usually what the hackers they do, they will take the advantage of emotions. True. Either in their message you will find that they will ask you to do something in hurry, okay, or they will take the advantage of fear factor, okay, that if you don't do this, this will happen. Okay. So some people who have such kind of past experiences or who are not handling their systems very efficiently, they sometimes get trapped in these kind of messages. So now if you click on that link, okay, it will take you to the CMS page. आप उसमें भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि आपकी यूनिवर्सिटी का है या इट्स गोइंग समवेयर एल्स. And what the hacker need, he just need your credentials. Okay, so this is one way to get some information.
साइबर हो या नॉर्मल लाइफ हो, आप ऑलवेज बेसिक एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं रिकॉनेसेंस से, ठीक है। रिकॉनेसेंस इंफॉर्मेशन गैदरिंग, ठीक है। इवन अगर आपने अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में अगर कोई प्लानिंग भी करनी है, कहीं जाना है, तो सबसे पहली चीज़ आप क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं। कैसे जा सकते हैं, कौन सा रास्ता है, सिक्योर है नहीं है, हालात कैसे हैं, मौसम कैसा है। तो सिमिलरली हैकर्स जो हैं, क्योंकि एक लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि हैकर्स दे आर लाइक मैजिशियन, जादूगर हैं, ठीक है। तो दे कैन डू एवरीथिंग। सर समझ नहीं आता ना, जो चीज़ हमें समझ नहीं आती, बाय ह्यूमन नेचर हम उसको मैजिक टैग कर देते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा, हैज़ टू बी मैजिक। एग्जैक्टली। लेकिन उनको भी मेहनत करनी पड़ती है, उनको भी चीज़ों को मैनिपुलेट करना पड़ता है, ठीक है। उनको भी यूज़र की सपोर्ट चाहिए टू गिव देम व्हाट दे नीड। सो हर आम शख्स जो है, जब उसके पास कोई ऐसी चीज़ आती है, इसका बड़ा बेसिक सा तरीका है। इंग्लिश में कहते हैं, इफ़ समथिंग इज़ टू गुड टू बी ट्रू देन इट्स नॉट ट्रू, ठीक है ना। तो आपके पास जब भी साइबर स्पेस में भी जब कोई आपसे कांटेक्ट करता है, जब कोई आपको ईमेल आती है, जब कोई आपको मैसेज आता है, तो पहली चीज़ आपने ये देखनी है कि इसमें आपको ऑफ़र क्या कर रहे हैं, ठीक है। आप कभी भी जो जिसे हम कहते हैं ना ग्रीड या लालच, उसके अंदर आपने नहीं आना। यू हैव टू इवेलुएट, यू हैव टू असेस, बुनियादी चीज़। समटाइम आपको अगर ईमेल आई और आपको पता है आप ये ईमेल एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, आउट ऑफ द बॉक्स आ गई है, डोंट गो फॉर इट, ठीक है। कई दफ़ा ऐसा होता है, हमें एक दफ़ा एक ईमेल आई यूएई से, ठीक है, फ्रॉम अ वेरी रिप्यूटेड कंपनी, ठीक है। एंड दे से दैट योर कंपनी इज शॉर्ट लिस्टेड टू बी अवर वेंडर, सो साइन दिस फॉर्म एंड सेंड इट टू अस, ओके। फर्स्ट फेज इट वाज नॉर्मल, we did sign. In second phase they say, okay, to be registered vendor you need to pay 25,000 dirhams, okay, and this is required. So sometimes it's not necessary that there is a single link. Exactly. वो आपके साथ काम करेंगे for a longer period of time unless they get their objectives. तो हर शख्स को जब उसके मोबाइल पर कोई एसएमएस आता है, कोई मैसेज आता है, व्हाट्सएप पर कोई चीज़ आती है, तो आपको ये बेसिक चीज़ें करनी है। आपने ये देखना है, बड़ी बुनियादी चीज़ ये है कि ये जितने भी फ्रॉडस्टर होते हैं, हैकर्स होते हैं ना, नॉर्मली अगर आप इनकी लैंग्वेज देखेंगे, इफ़ यू लुक एट देयर लैंग्वेज, यू विल फाइंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, ओके। समटाइम्स यू कैन गेस फ्रॉम देयर एक्सेंट। We are a couple of times I received call in Saudi Arabia. The guy is speaking in Arabic and he's saying that I'm calling from Ministry of Interior, okay, and you need to update your ATM pin code. So it's very basic thing. Why Ministry of Interior will ask me to change my pin code? Second thing, they are talking in Arabic, but their accent is from another region, not from even Not Saudi from- Arabia. Right. I don't want to specifically take names, but from their accent you can clearly understand. But what they are trying to do, they are taking advantage of Ministry of Interior in Saudi. So I am being an expert. If I receive call from Ministry of Interior, I automatically You're going to be so focused on Ministry of Interior Yes, that you wouldn't exactly. even pay much attention to what comes after that. Exactly. But they are getting better. Unfortunately, the grammatical errors are getting Yes, better. they have. And because I host these podcasts and I'm a radio broadcaster as well, when I used to receive such calls, so I used to be very confident and I would start questioning them कि आप Yes. बताएं अच्छा ये कहाँ से कॉल करें, Yes. कौन सी ब्रांच, किधर है ये Exactly, ब्रांच, exactly, yeah. and people would panic. Yes. And this has come as a shock to me also कि recently they don't panic. They continue answering, gee, this branch, that branch, this city. Yes. And they're very well spoken. Yes. So unfortunately, they are getting better at what they're doing as well. Yes, so we have to So we also have to go back to the basics. कि Exactly. हमने information नहीं देनी, Exactly. हमने OTPs, one-time passwords नहीं Yeah. देने. कोई person से आपने का credentials. When you are asked about something, I think the simplest rule is no. I'm not Yes, going to tell you yes, any of my exactly. information. See, the basic thing is that we don't ask actually. When you go to a bank, okay, they will send you a message and they will explicitly mention that no one will ever ask you about your OTP Exactly. or your PIN code. और अब तो कई सालों से ये पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स हैं, जी। नोटिस हैं, एप्स आप खोलें, बैंक की नीचे एक है कि प्लीज डू नॉट शेयर योर वन टाइम पासवर्ड. Exactly. Yesterday I was telling Naveed, I received I think couple of messages. Somebody was trying to hack my Easy Paisa account. So I was getting constantly messages, okay, with OTP, and then from another number, this is to share the OTP number. So I was just ignoring it because I know that the guy, he needs OTP. Without OTP, he cannot move forward. So see, what we did, how we improve it. So what we did, we added 2FA or MFA, okay. So it's a multi-factor authentication, okay. So in multi-factor authentication,
something you know and something you need to know. So something you have, but something you need to have from another source. Right. So this is the concept of OTP. ठीक ओके, बिकॉज देखें, आपको आपका यूज़र नेम पता है, आपको आपका पासवर्ड पता है, दैट यू विल यूज़ टू लॉग इन टू योर एप्लीकेशन, बट देन द एप्लीकेशन रिक्वायर्स OTP. ठीक है ना, तो OTP विल कम टू योर मोबाइल फ़ोन. ओके, सो तब आप उसमें ऑथेंटिकेट कर सकते हैं. तो बैंक्स भी इम्प्रूव कर रहे हैं चीज़ों को, लेकिन हमें ये अवेयरनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना है, स्पेसिफिकली पाकिस्तान में. क्योंकि एक जो सबसे पहले चीज़, जब मैं जाता हूँ ऑर्गेनाइजेशंस में एंड व्हेन आई टॉक विद देम अबाउट साइबर सिक्योरिटी, so since cybersecurity for any business, okay, what is the reason or what is the business driver? Okay, what is the motive to have something? So if I'm selling something on a grocery store, why do I need cybersecurity? Okay, it does not make sense. Yes, I may need CCTV cameras, okay, to monitor, or to record who is coming to the shop and leaving, but I do not need cybersecurity. But when I go to organizations, okay, where they need cybersecurity, still they do not want to have it, because to them it's a luxury, okay, because it requires additional investment. But what they don't understand, if you don't apply cybersecurity and when an incident happen, okay, how much is it going to cost you? A lot. जी, डेफिनेटली, बिकॉज उसके अंदर सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा, रेपुटेशनल भी होगा. Reputational होगा. When your end consumer, your client loses trust, Yes. you can never gain it back. Yes. So one of the thing that cybersecurity does is it's ensure that your customers they trust you. बिल्कुल इसी तरह जी. हम अब इस दुनिया में हैं, बिकॉज देयर मल्टीपल जनरेशंस लिविंग साइड बाय साइड, एंड येट इतने चेंजेस ओवर द लास्ट फ्यू डेकेड्स ही हमने देखे अपनी ज़िंदगियों में कि हम एक दरवाजे पर बिठाए हुए गार्ड की अहमियत को समझते हैं. जी. हम बॉर्डर्स पर वी हैव आवर सोल्जर्स गार्डिंग द जियोग्राफिकल बॉर्डर्स. Exactly. हम उसकी अहमियत को समझते हैं जी. और समझनी चाहिए. बिल्कुल. But at the same time, हम as users, we have this luxury of not knowing that who is guarding our cyber presence. Yes. या जो हमारे बैंक अकाउंट्स हैं, अब कहीं किसी दीवार में तो पैसे नहीं चुने हुए हैं, एक डिजिटल प्रेजेंस है, एक अकाउंट है, एक नंबर है कि यू हैव दीज एसेट्स इन योर नेम, यू हैव दिस मच मनी इन योर नेम. जी. उसको भी गार्ड करने के लिए somebody came up with, एक आम अल्फाज में अगर मैं कहूँ फॉर्मूला, किसी ने Yes. एक फॉर्मूला बनाया जिसने आपके उस एसेट को सिक्योर किया. Exactly. People like you are working in this domain day and night. आप भी तो सिपाही ही हैं एक तरह से. You are guarding our cyber presence. Cyber And presence. in today's world, it is just as important as guarding your geographical borders. Definitely. तो सर एक सवाल जो जैसे ही मुझे, जब मेरी टीम ने कम्युनिकेट किया, वी हैव मिस द ब्रिलियंट मिस समीरा खान हियर एट ITU. शी टोल्ड मी दैट आई विल बी इंटरव्यूइंग यू. पहला सवाल जो मेरे जहन में आया वो ये था दैट आई विल डेफिनेटली टॉक अबाउट दिस वेरी recent episode that we have of tensions between India and Pakistan and sheer unprovoked aggression by the Indian government. जी. उसमें हमने देखा that our cyber security and our cyber security capabilities basically was something that took all of us by surprise. हम लोगों ने वही वाली बात कि जिस चीज़ को as a user, as a layman कभी समझा नहीं, कभी अहमियत नहीं दी, हमें तब पता लगा कि oh God, this saved us today. This Yes. helped us defend our geographical presence. What? Our capabilities in the cyber domain. तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप उस पर भी बात करें कि how well we performed, definitely. And God forbid, in future, if such a situation arises again, so what do you think can further be done in this regard to, strengthen our country further? डेफिनेटली. एक्चुअली इसके दो हिस्से हैं. ठीक है, पहला हिस्सा तो जो जनरली देखें, अभी ये जो रिसेंट सिचुएशन हुई उसके अंदर मेनली क्योंकि उस वक्त सिचुएशन जो थी वो बहुत एस्केलेटेड थी. ठीक है, तो उसके अंदर जो भी आप एक्शन करेंगे ना वो हाईलाइट होगा. अदरवाइज आई थिंक ऑन अ रूटीन बेसिस एवरी डे पाकिस्तान इज़ बीइंग अटैक्ड. बिल्कुल, कितने साइबर अटैक्स. वही मैं कह रही हूँ, ये हमारी लग्जरी और प्रिविलेज है कि हमें एज ले पर्सन्स पता भी नहीं चलता. अदरवाइज ऑन डेली बेसिस बहुत ज़्यादा अटैक्स होते हैं पाकिस्तान के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर, बैंक्स के ऊपर, और पास में ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पे कुछ बैंक्स यहाँ पे वो ब्रीच हुए हैं. ठीक है, अब डेफिनेटली जो ऑर्गेनाइजेशंस इस सिचुएशन से गुजरती हैं पब्लिकली दे डू नॉट अनाउंस, लेकिन
इस तरह के केसेस हुए हैं। तो उसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ ना, हैकर्स की भी इकसाम है, ठीक है। एक हैकर्स तो वो हैं जो कि सिर्फ तफरीह के लिए या फ़न के लिए हैकिंग एक्टिविटी करते हैं, बट देन द मोस्ट सीरियस वन, दे आर नेशन स्पॉन्सर्ड अटैकर्स और ग्रुप्स। तो हर मुल्क, हर कंट्री जो है उनके पास अपना पूरा एक अर्सनल है, एक टीम है, ठीक है, जिनका काम ही यही है, ठीक है, कि उन्होंने जो, क्योंकि इट्स अ साइबर वॉरफेयर नाउ, ठीक है, तो उन्होंने अपनी जो उनकी एनिमीज़ हैं उनकी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि उनका ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि अगर आज मुझे वीकनेस मिल गई तो मैं फ़ौरन अटैक कर दूँ। सो देयर इज़ अ डिफरेंस, बिकॉज जो फ़न के लिए कर रहा है वो शायद आपके इंस्टाग्राम का या फेसबुक का पासवर्ड हैक करके या उसको किसी तरह लेकर आपके अकाउंट को जो है ना आपको लॉकआउट कर देगा और आपकी एक्सेस ले लेगा, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव यही है। लेकिन जो नेशन स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टर्स हैं उनका ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता, उनके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सो दे मे बी ऑलरेडी इन योर सिस्टम and they are just observing it for a longer period of time until they need it, okay। अब इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के अटैक्स होते हैं, जैसे एक अटैक जो जिसे हम कहते हैं DDoS, ठीक है। इट्स अ वेरी सिंपल अटैक। DOS था पहले जब सिस्टम्स इतने ज़्यादा एडवांस नहीं थे, और फिर DDoS आया, ठीक है। इसमें करते क्या हैं, जैसे मैं और आप अभी हम गुफ्तगू कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलने का मौका ही ना दूँ एंड आई कीप टॉकिंग, ठीक है, तो एक तरह से मैंने आपको जो है बिल्कुल अनअवेलेबल कर दिया रिस्पॉन्ड करने के लिए, ठीक है। लेकिन व्हाट इफ़ मेरे साथ 20 लोग और यहाँ खड़े हैं एंड एवरीबडी स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस, तो आप किसी को भी रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो DDoS इज़ सिमिलर काइंड ऑफ अटैक, जिसमें हैकर्स क्या करते हैं, मुख्तलिफ सिस्टम्स, इवन उनको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं चाहिए। समटाइम्स हो सकता है मेरा लैपटॉप जो है, ठीक है, उसको भी उन्होंने जो है ना एक्सेस करके, तो उसके अंदर अपना बॉट इज़ अ स्मॉल सॉफ्टवेयर जो उसमें रखा हुआ है, ठीक है। तो व्हेन दे वांट टू अटैक, ओके, दे जस्ट नीड टू प्रेस वन कमांड and all these bots are they connected and they will start attacking one of the website, one of the system, they would sort of activate it. तब तक वो बिल्कुल inactive रहेगा, खामोश, and you wouldn't be able to detect जी, it. क्योंकि आम यूज़र जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि उसकी मशीन में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर, एट द एंड ऑफ द डे ये तमाम चीज़ें जो आपकी मशीन में, ये सॉफ्टवेयर्स हैं, कोड्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। और प्रोग्राम्स जो हैं वो इंसान लिखते हैं, और इंसान ही उन प्रोग्राम्स के अंदर कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई खामी छोड़ देता है, जिसको वो एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है। तो एक किस्म ये हो गई। अच्छा, अब जो बात हो रही थी, मैंने कहा कि इसके दो हिस्से ना, तो एक हिस्सा तो ये कि हमारी गवर्नमेंट जो है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पिछले 5 सालों में देखा है बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, ठीक है। नेशनल सर्ट जो इस्टेब्लिश किया है, ठीक है, वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, अवेयरनेस के ऊपर, ट्रेनिंग्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वो लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है। उसके अलावा नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी जो है, ठीक है, उसका ड्राफ्ट आया था, अब उसका फाइनल वर्जन जो है वो लॉन्च हो गया है, ठीक है। अब पॉलिसी की बेस के ऊपर कुछ फ्रेमवर्क्स बनेंगी, कुछ गाइडलाइंस बनेंगी जो मुख्तलिफ तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को फॉलो करनी है, ठीक है। तो रेगुलेशन होती है इसलिए कि वो इंश्योर करती है कंज्यूमर और जो बिज़नेस है दोनों के इंटरेस्ट को सिक्योर करना, ठीक है। दूसरी चीज़, इसके अलावा एक ज़िम्मेदारी तो गवर्नमेंट के लेवल पर है, लेकिन एक ज़िम्मेदारी जो है ना ऑर्गेनाइजेशंस के लेवल पर भी है। आप हर चीज़ गवर्नमेंट पे नहीं छोड़ सकते। That is so important. ठीक है, आपको एज एन इंडिविजुअल आपको खुद ये सोचना है, ये समझना है कि आया आपके बिज़नेस के लिए सिक्योरिटी ज़रूरी है। अगर है तो आपको फिर वो इकदाम करने हैं। यू हैव टू टेक दोज स्टेप्स विच विल इंश्योर दैट योर बिजनेस इज़ सिक्योर। ठीक है, क्योंकि ये वन टाइम एक्सरसाइज नहीं है, ये वन टाइम प्रैक्टिस नहीं है। ये जिस तरह से आपके बिजनेस में या आपकी डे टू डे रूटीन में बाकी चीज़ें होती हैं, इसी तरह आपने इसको भी अडॉप्ट करना है। ठीक है, एंड आई थिंक नाउ इट्स नॉट समथिंग दैट यू कैन अवॉइड, डेफिनेटली, क्योंकि एक बाय ह्यूमन नेचर एक पहला रिस्पॉन्स होता है ना कि छोड़ो, अवॉइड करो, लेट्स नॉट गो देयर, जब ज़रूरत पड़ेगी तो देखेंगे। बट इट्स वेरी राइट दैट यू हाईलाइटिंग दिस राइट नाउ कि अब ये अवॉइडेबल नहीं है फॉर मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली अगर आपके बहुत सेंसिटिव मैटर्स हैं जो आप डील कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, देन दिस इज़ नॉट एन ऑप्शन एनीमोर, यू हैव टू टेक दिस। अब देखें ना, अटैकर्स के लिए भी अब जो नई फैसिलिटीज़ हैं, जैसे AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको भी हमने डिस्कस नहीं किया। AI ने क्या किया है, बिफोर जब हम किसी कंपनी में जाते थे एंड वी वांट टू टेस्ट देयर स्टाफ अवेयरनेस, तो वी नीड टू क्राफ्ट एन ईमेल, फिशिंग ईमेल, हम उसको फिशिंग कहते हैं, फिशिंग ईमेल, ठीक है ना। तो फिशिंग विद PH, fishing with PH, but the concept is same when you go on fishing. Absolutely, okay, so you are waiting for a fish to get Exactly. trapped. ठीक है ना, तो इसमें भी यही किया जाता है। तो जब हम फिशिंग ईमेल लिखते थे तो उसके लिए हमें टाइम लगता था, क्योंकि आई नीड टू थिंक अबाउट द टॉपिक,
क्या टॉपिक होना चाहिए, फिर उसके अंदर क्या एलिमेंट्स मैं ऐसे डालूंगा कि जिससे उस कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ है ना उनकी मुझे अवेयरनेस का पता चला है कितने वेट आपने अवेयर। अकॉर्डिंगली जी डिसाइड कर लिया है कि एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग टू ट्रैप द मोस्ट नंबर ऑफ फिश. एग्जैक्टली। तो उसमें पहले टाइम लगता था, वक्त लगता था। नाउ व्हाट हैपन विद द possibility or with the available platforms from AI, I simply go on ChatGPT, okay, and I just need to tailor my prompt, ठीक है, और based on that prompt it will take couple of seconds और मेरा पूरा जो वेपनाइजेशन इसे कहते हैं हम अपनी ज़ुबान में वो रेडी है, ठीक है, जिसको मैंने भेजना है एंड यूज़र को। तो अगर पहले मुझे एक हफ़्ता लग रहा था तो अब आई कैन डू दिस इन सेकेंड्स। सो अब डेफिनेटली जो अटैक्स हैं उनकी शिद्दत भी बढ़ गई है, तो यू हैव टू रिप्लाई टू देम, यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू देम, यू हैव टू बी रेडी, यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। एग्जैक्टली. अच्छा, मैं अक्सर मजाक में ये कहा करती हूँ दैट इफ़ माई टाइमिंग्स आर बीइंग रिकॉर्डेड समवेयर, तो मैंने चैट जीपीटी ज़िंदगी में जब भी इस्तेमाल किए 5 बजे के आसपास इस्तेमाल किए, बिकॉज आई स्टार्ट माई डे अर्ली एट 9, 10, 11 आई एम वेरी फ्रेश, ड्राफ्टिंग वट एवर नीड्स टू बी ड्राफ्टेड, and by 5 when I'm exhausted and then something new comes in, then I'm like, okay, I go to my good friend chat gpt and then take its help, because obviously you as a person, you have that human element that you get exhausted, you get tired, but then the technology is there to support you when you need it. बेसिकली ये मेरी अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है कि AI को बहुत ज़्यादा हाइप दी जा रही है, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे इट्स स्टिल अ टूल। Exactly. ठीक है। It's actually, I think, the new buzzword. It just not everybody sort of picks it up. It's easy. Yes. And I was recently, I just read it on a board, and in not a very posh area, this school is AI powered, and it was a primary school for kids. And obviously, first I could not really catch or think कि अच्छा, एक primary school with early years, etc. वो कैसे एक AI powered school है here in Pakistan in a remote area all of a sudden. Yeah. So वो obviously now we're sort of overusing the word also. एग्जैक्टली। आप इसको इस तरह से देखें अल्लाह की जो सबसे खूबसूरत तख्लीक है ना वो इंसान है, ठीक है, बिल्कुल अशरफुल मखलूकात. हाँ जी। और इंसान जब पैदा होता है, ठीक है, तो इवन उसकी जो लर्निंग का प्रोसेस है ना, AI मशीन इज़ आल्सो लर्निंग, ठीक है, तो इंसान जब पैदा होता है, जब वो बड़ा होता है तो हर कदम पे वो सीख रहा होता है, ठीक है, लर्निंग का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, जैसे जैसे वो लर्न करता है तो लर्निंग बहुत ज़रूरी है, जैसे जैसे वो लर्न करता है इट हेल्प्स हिम टू टेक डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। अब AI में सो फार मैंने खुद भी कई दफ़ा ऑब्जर्व किया है कि जब मैं उसको कोई प्रॉम्प्ट देता हूँ तो कई दफ़ा व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग आई गेट दैट रिजल्ट, समटाइम्स आई डू नॉट गेट, ठीक है। तो लोगों को ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि चाहे वो AI हो, ब्लॉकचेन हो, ठीक है, ये सारे आपके लिए टूल्स हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मदद देती हैं, ठीक है। और अगेन इन सब के साथ फिर साइबर सिक्योरिटी जुड़ी हुई है, क्योंकि एक तरफ आप AI को यूज़ कर रहे हैं बहुत सारे कामों के लिए, लेकिन स्टिल AI को कौन सिक्योर करेगा, True. ठीक है। व्हाट इफ़ कि अगर AI के अंदर जो आप डेटा उसको इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, वो अगर आप उसको इमोशनली जो है अटैचमेंट के साथ दे देते हैं या नेगेटिव माइंडसेट के साथ आप उसको देते हैं तो उसका जो रिस्पॉन्स आएगा वो वैसा ही आएगा, क्योंकि उसने तो आपके इनपुट के ऊपर डिपेंड करना है, Exactly. ठीक है ना, तो उसको भी सिक्योर करना ज़रूरी है। तो इवन अभी जो है कुछ नए फ्रेमवर्क्स आए हैं, कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसके ऊपर काम करती हैं, ठीक है, एंड दे ब्रिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रेमवर्क्स विच आर लाइक स्टडीज़ और बेस्ट प्रैक्टिसेस, ओके। हमने ITU में भी सेशन किया था ISO 27001 को लेके, विच इज़ अगेन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम फ्रेमवर्क, ठीक है ना, जिसमें हमने बच्चों को बताया कि किस तरह से आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं अपने किसी भी इंस्टीट्यूशन को, नॉट नेसेसरी कि कोई कंपनी, बट आपकी यूनिवर्सिटी, आपका घर, आप कहीं भी इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है, और उससे आप अपने आप को सिक्योर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह नए फ्रेमवर्क्स भी आ रहे हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी के साथ साथ जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको कैसे गवर्न करना है, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं, जिस तरह से अब इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है, प्राइवेसी एक बहुत बड़ा मैटर है, एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को विदाउट अवेयरनेस, विदाउट नॉलेज, ठीक है, विदाउट लर्निंग आप उसको हैंडल नहीं कर सकते। पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ को इसके ऊपर काम करना है, यूनिवर्सिटीज़ को अपना करिकुलम चेंज करना है। मैं मतलब जस्ट वांटेड टू शेयर कि मेरा बेटा जो है वो अभी 8th ग्रेड में है, तो उसकी मैं कंप्यूटर साइंस देख रहा था तो वो उसमें कुछ चीज़ें वो पढ़ रहा था जो मैंने 8th ग्रेड में पढ़ी थी। Charles, starting from Charles Babbage and generations of computers, कुछ right? चीज़ें We ना, really have to. I really love that phrase, और मुझे लगता है मैं अब इसको आजकल ओवर यूज़ कर रही हूँ, that you have to unlearn and then relearn. यस, Especially for people, अब हम जब schooling, education वाली जर्नी से बाहर आ गए हैं, जी, for us we really need to unlearn some things and sort of
adapt with whatever is coming forward now. जी And for kids, like you rightly mentioned, it's so important कि उनका भी अभी से हम वो चेंज जो है उसको उनकी पढ़ाई में, उनके एकेडमिक्स में किसी तरह इनकलकेट करें. जी आपको अपने निसाब को रिव्यू करना पड़ेगा, रिविजिट करना पड़ेगा कि उसके अंदर क्या चीज़ें हैं विच नीड टू बी इन्हेंस्ड, क्योंकि अदरवाइज़ आप बाकी दुनिया से पीछे रह जाएंगे. ठीक है ना, जहाँ पे दूसरे ममालिक में ठीक है उनका ज़्यादा फोकस अब इन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर है और इन चीज़ों के ऊपर है. हम अभी भी बच्चे को जो है ना वो C और C++ पढ़ा रहे हैं विच इज़ गुड. फाउंडेशन पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी है, आपकी नॉलेज बिल्ड होती है, आपको अंडरस्टैंडिंग आती है. लेकिन रिसेंटली आई वॉज गोइंग थ्रू अ ट्वीट. ओके, सो उन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म डेवलप किया है. ठीक है, उसमें आपको कोड लिखना नहीं है. ओके. ठीक है, आपने सिर्फ उसको इनपुट देना है. ठीक है, तो पहला प्लेटफॉर्म जो है उस पूरे कोड को राइट करेगा, दूसरा उसको सिक्योरिटी वाइज चेक भी करेगा. ठीक है, तो जो डेवलपमेंट करने के लिए आपको 6 महीने लगने थे, आई थिंक विद इन 2 और 3 डेज आप वो पूरी एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं. ठीक है, दैट्स फाइन. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसको इवेलुएट कौन करेगा? बिल्कुल. Absolutely. ठीक है. It's not like these technologies or these advancements are going to replace you, but you must adopt them. Definitely. Because they will support you. Definitely. आप अगर बिल्कुल अपने दरवाजे बंद करके बैठ जाएंगे कि मैंने ना सीखना है, और वही जो मैं अवॉइड करने की बात कर रही थी कि अगर हमारा रिस्पॉन्स है टू अवॉइड इट अंटिल वी एब्सोल्युटली नीड इट, फिर हाँ हम शायद रिडंडेंट हो जाएं अपनी फील्ड में. बट इफ़ वी अडॉप्ट दीज टूल्स एंड वी यूटिलाइज देम and we use them to support us in our work and make it better, enhance it further, then obviously we're going to sort of succeed in our respective field as well. Definitely. तो डरना नहीं है उसको, बल्कि अडॉप्ट करना है, सीखना है और फिर यूज़ करना है. बेसिकली इसमें एक जो चैलेंज है बीइंग ह्यूमन, आई थिंक वी डोंट लाइक चेंज. We don't. ठीक है, and we have seen this even in the organization. After 30 we absolutely don't. Even within the organizations we have noticed that people, they don't like the change. So if we are going to bring a new technology, so you will see that they do not want to engage, involve, There's or learn. hesitation, there's resistance. Yes, exactly. Even people after a certain period of time, they stop learning. आपने ग्रेजुएशन कर लिया, आपने मास्टर्स कर लिया, and that's it. Myself, मैंने ग्रेजुएशन किया 2004 में, फिर मैंने 2012 में मास्टर्स किया आईटी में, और फिर 2024 में मैंने जो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में मास्टर्स किया. Excellent. And there must have been a striking difference between these, because जैसे मैं बात कर रही हूँ कि ठीक है हर दौर में ही चेंज आ रहा होता है, तरक्की हो रही होती है, बट इफ़ वी टेक द लास्ट 70 years into account, 50-60 years, इतने रैपिड चेंजेस शायद इससे पहले जनरेशंस ने नहीं देखे थे. बिल्कुल. और स्पेसिफिकली ये जो लास्ट 20 से ना पिछले 20 साल हैं, अगर आप देखें जितनी आज बड़ी कंपनीज हैं, गूगल है और एप्पल है और इस तरह के, ये 20 से 30 साल का स्पैन है इनका. बिल्कुल. ठीक है, इसी अरसे में ये कंपनीज बनी हैं और आज आप देखें वो कहाँ पर हैं, क्योंकि उन्होंने जो है ना वो चेंज को अडॉप्ट किया, उसको रेजिस्ट नहीं किया. ठीक है, तो दैट्स द की एलिमेंट फॉर तमाम जो लोग सुन रहे हैं कि जब कोई चेंज आता है उसको अंडरस्टैंड करें आप. ठीक है, उससे भागे मत. हाँ, भागे मत. हमारा आई थिंक एज अ ह्यूमन एक नेचुरली होता है कि हम हमेशा चेंज को क्रिटिसाइज़ करते हैं. बिल्कुल. ठीक है, लेकिन अगर आप उसको डेप्थ में देखेंगे तो उसके अंदर से आपको अच्छे एलिमेंट भी मिलेंगे और आपको शायद कुछ ऐसी चीज़ें मिलें जो ख़राब भी हैं, और अगेन आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं उसके ऊपर दोबारा काम करके. तो बैक एंड फोर्थ आपने उसको देना, एनालाइज करना है, उसके ऊपर काम करना है, उसको इम्प्रूव करना है. Sir, this I must say has been, a fantastic and absolutely brilliant conversation we've had with you. And now I would like to move on to the second part, because मैंने आपके introduction में भी ख़ास तौर पर इस पर इसीलिए emphasize किया था that mashallah you have a profile that combines two skills or talents, however you want to put it, in the best way possible, that you have grasp over the cyber domain, you have knowledge, you have education to support it, and mashallah excellent experiences as well. Combine that with entrepreneurial skills, and how you successfully turned into a co-founder and CEO of Miral Cybersecurity. तो मैं चाहूँगी कि क्योंकि हमारी टारगेट ऑडियंस भी यंगस्टर्स हैं, हमारे अपने ITU के बहुत से स्टूडेंट्स हैं, कि उनके साथ आप अब साइबर सिक्योरिटी की अंडरस्टैंडिंग भी उनको माशाल्लाह, हम लोगों से, मैं अपनी बात करूँ तो मुझसे तो बहुत बेहतर है अब इन बच्चों को. सो द सेकेंड थिंग आई वुड लाइक फॉर आवर स्टूडेंट्स टू लर्न फ्रॉम यू एंड योर एक्सपीरियंसेस इज़ कि आपकी जो एंटरप्रेन्योरियल जर्नी रही उसके हवाले से आप ज़रूर बात करें. हाउ यू स्टार्टेड ऑफ एंड हाउ आर यू मेंटेनिंग इट, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट टेकिंग द लीप, इट्स ऑल्सो अबाउट कंटिन्यूइंग दैट पर्टिकुलर कंसिस्टेंसी के साथ आप काम करें, डेडिकेशन के साथ यू keep putting efforts into it, and then
मेक इट इनटू समथिंग सक्सेसफुल। डेफिनेटली। तो मुझे बताइएगा आपकी एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर जो सफ़र का जर्नी का आगाज़ हुआ, कब कहाँ कैसे? दरअसल ये तो मेरा ख्याल है जब मैं आया व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर, ओह, ठीक है ना, मैंने तब पहला अपना एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट किया, ठीक ओके। है। आई जस्ट स्टार्टेड अ स्मॉल शॉप फॉर कपल ऑफ मंथ्स एंड आई फेल्ड, ठीक है। So you had that germ. Yes, but challenge was that at that time within my family this keyword entrepreneur it was not known. Okay, so मेरी फैमिली में सब लोग जो हैं वो मतलब मुलाजमत पेशा थे। क्योंकि वो भी सर एक चेंज है, दैट जी। अगेन इज अ रिस्क, जी। और वही जैसे कि हमने बात की कि बड़ा हेजिटेशन होती है जी टुवर्ड्स जी टेकिंग दैट एग्जैक्टली। जब आप जॉब करते हैं तो आप रिस्क को बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं। आपको पता है कि एट द एंड ऑफ द मंथ यू विल गेट हैव योर सैलरी एंड थिंग्स हैव बट व्हेन यू गो इनटू एंटरप्रेन्योर और इनटू योर ओन वर्क यू डोंट नो व्हाट्स कमिंग अप नेक्स्ट, ठीक है। तो सम टाइम इट्स वेरी टफ, ठीक है। आप जब अगला दिन आ रहा होता है और आप सोच रहे होते हैं कि यार अब मैंने क्या करना है, ठीक है। समटाइम्स इवन आपकी फैमिली के अंदर जो लोग हैं ना वो आपको डाउटफुल नज़रों से देख रहे होते हैं, एब्सोल्युटली, ठीक है, क्योंकि सक्सेस जो है वो अपने वक्त पर आती है। कुछ चीज़ें आपके इख्तियार में हैं, कुछ चीज़ें अल्लाह की तरफ से हैं, बिल्कुल, ठीक है। आपने अपना एफर्ट करना है, ठीक है। आपने कंसिस्टेंटली जो आप काम करना चाह रहे हैं वो आप करें, ठीक है। आपको इंडस्ट्री में सपोर्ट मिलेगी, नॉट नेसेसरी कि आपको एक जैसे लोग मिलें। कुछ लोग बड़े सपोर्टिंग होंगे, कुछ लोग शायद आपको अच्छा रिस्पॉन्स ना दें, उससे आपने अपना जो है दिल ख़राब नहीं करना, हिम्मत नहीं हारनी, यू कीप मूविंग ऑन, ठीक है। तो एक एलिमेंट तो ये है कंसिस्टेंसी। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी टीम, ठीक है, क्योंकि देखें आप स्टार्ट करते हैं अकेले, फिर आपकी टीम बनती है, ठीक है। आपकी टीम जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, एक चीज़ है, लेकिन आप अपनी टीम को डेलीगेट भी करें, ठीक है, आप उनको अथॉरिटी दें। दीज आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर, ठीक है। यू डोंट नीड टू बी अ मैनेजर बट यू नीड टू बी अ लीडर। लीडर अपनी टीम पे ट्रस्ट करता है, बिल्कुल, ठीक एंड है। दैट इज हाउ यू गिव देम कॉन्फिडेंस आल्सो, क्योंकि एग्जैक्टली, जब तक आपकी तरफ से ट्रस्ट नहीं होगा उनमें कहीं और से तो कॉन्फिडेंस आएगा नहीं। दे सॉर्ट ऑफ डिराइव दैट कॉन्फिडेंस आउट ऑफ द ट्रस्ट दैट यू पुट इन देम। जी। देखिए मैं इसकी बड़ी बेसिक एग्जांपल देता हूँ। मैं और मेरी वाइफ जो है ना, बेटा हमारा, क्योंकि हम KSA में रहे हैं ज़्यादा लाइफ, तो बच्चे KSA के जो हैं वो इतने स्मार्ट नहीं होते जो कि बच्चे यहाँ पाकिस्तान में हैं, क्योंकि हम बच्चों को घर से निकालते नहीं हैं, नीचे भेजते नहीं हैं, ठीक है। लैंग्वेज बैरियर है और बहुत सारे फेयर्स होते हैं, ठीक है। तो जब मेरा बेटा जो है उसको मैंने एक दिन शॉप पे भेजा कि जाओ तुम सामान ले आओ, तो मेरी बीवी परेशान हो रही थी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको जाने दो। आई वॉज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम फार एज अ फादर, ठीक है। मैं उसको सुपरवाइज़ कर रहा था, लेकिन मैं उसके अंदर जाके इन्वॉल्व नहीं हुआ कि मैं इसके साथ जाऊँ, क्योंकि आई वॉन्ट हिम टू बी कॉन्फिडेंट, एब्सोल्युटली, ठीक है। एंड दैट वुड हैव हैम्पर्ड हिज एग्जैक्टली। तो जब वो लेकर आया चीज़ तो ही वॉज़ वेरी हैप्पी कि जी मैं खुद लेकर आया हूँ। तो सेम चीज़ मैं अपनी टीम के साथ भी करता हूँ, ठीक है। मैं आई डोंट केयर अगर वो चीज़ें ख़राब कर दें, कोई मसला नहीं है, ख़राब हुई हैं ठीक हो जाएंगे, गलतियाँ सबसे होती हैं, ठीक है। अच्छा, मैं इसी तरफ आना चाह रही थी, बिकॉज इफ़ यू टेंड टू बी अ परफेक्शनिस्ट तब भी डेलीगेट करना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ जी, आपको लगता है कि बहुत एफर्ट है, टाइम है, मैं किसी और को सिखाऊं, मैं खुद ही कर लेता हूँ, हाँ। एंड इवन दैट इज गोइंग टू लीड टू फेलियर एट सम आप पॉइंट। स्केल अप नहीं कर सकते नहीं ना। कर सकते, आप कैसे अपने काम को बढ़ाएंगे? आपको हर जगह आप खुद जा नहीं सकते, एग्जैक्ट, ठीक है। यू कैन नॉट बी एवरीवेयर, ठीक है। तो आपकी टीम पे अगर आपको ट्रस्ट है और आपकी टीम उस चीज़ को समझती है तो दे विल टेक द लीड, तो आप और लीडर्स डेवलप करेंगे। एब्सोल्युटली, एंड ठीक दैट है। इज सो इम्पोर्टेंट। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो सर ये तो डेफिनेटली हमने एक स्टार्टअप की बात की, एंड देन यू टॉक्ड अबाउट हाउ कंटिन्यूइंग इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी गिवन द करंट सिचुएशन, करंट सिनेरियो एंड ऑल ऑफ दीज बज़वर्ड्स गोइंग अराउंड, बेसिक्स, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, AI, आप अगर हमारे आजकल के यंगस्टर्स को कोई एक सिंपल प्लेन मैसेज देना चाहें तो क्या मैसेज देंगे? वो बड़ा बेसिक सा और बड़ा सा सिंपल मैसेज है। देखें, जो उनका पैशन है ना उसको फॉलो करें, ठीक है, क्योंकि जो काम करने में आपको मज़ा आएगा ना आप उसमें सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के साथ होता ये है कि इवन मेरे साथ ये सेम सिचुएशन थी व्हेन आई वाज इन कॉलेज। आई डिड नॉट नो कि मुझे करना क्या है, ठीक है। घर वालों की एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं, दोस्त कुछ और कर रहे होते हैं, फिर आप दोस्तों को देखते हैं तो आप इन्फ्लुएंस होते हैं कि अच्छा यार ये MBA कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ, ठीक है। ऐसे ही। कुछ बच्चे होते हैं जिनको ये पता होता है कि उन्होंने क्या करना है,
बहुत सारों को नहीं पता होता। ऐसी सूरत में उनको अपने टीचर्स के साथ काउंसलिंग करनी चाहिए और इसमें टीचर्स की भी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है, कि बच्चों को वो गाइड करें, बच्चों को वो बताएं, ठीक है। अब कभी भी कोई चीज़ उनके ऊपर ना लेबल मत करें कि तुम ये कर लो, नहीं, ठीक है। एक टीचर जो है ना, ही सेम लाइक अ फादर और अ मदर, ठीक है। क्योंकि मेरा ख्याल है जब बच्चे स्कूल में और यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा टाइम अपने उस्ताज़ा के साथ गुजारते हैं, ठीक है। तो And ये they take them more seriously also. एग्जैक्टली तो ये उन टीचर्स की भी जिम्मेदारी है, ठीक है, कि वो बच्चों को देखते हैं, वो समझते हैं। आप बच्चे को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस जगह ज़्यादा अच्छा जा सकता है। तो वहाँ पे भी उसको स्टिल आप उसको ये मत कहेंगे तुम ये कर लो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। आप उसको सिर्फ मौक़े फ़राहम करें, ठीक है। वो खुद डिस्कवर करेगा कि मैं कहाँ अच्छा हूँ। तो ये सबसे बेसिक चीज़ है। जिस चीज़ में आपका पैशन है, जो काम करने में आपको मज़ा आता है, उसमें आगे जाएं। और हमेशा इंडस्ट्री में आप सपोर्ट के लिए लोगों से रब्ता करें, ठीक है। अगर आप लोगों को जाके रीच आउट नहीं करेंगे तो कैसे कोई आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। आई हैव वन वेरी गुड कोलीग फ्रेंड, ठीक है, ही रीच्ड आउट टू मी वी आर लिंक्डइन, ठीक है, पाकिस्तान से, और ही आस्क्ड मी सम क्वेश्चंस, ठीक है। अब मेरी अपनी ये थोड़ी सी आदत है कि आई ट्राई टू गाइड, ठीक है। तो मैंने उसको कुछ टिप्स दी, कुछ गाइडेंस दी, उसने वो चीज़ें सीखी। एंड देन ही केम टू सऊदी आया, फिर मुझसे रब्ता किया, ठीक है, और उसको एक अच्छी जॉब भी मिल गई। तो मेरे लिए जो है ना ये एक सक्सेसफुल केस है कि चलें आई वॉज एबल टू हेल्प समवन, ठीक है। तो इसी तरह बच्चों को पूछना चाहिए, बात करनी चाहिए। अगर एक शख्स आपको नहीं रिस्पॉन्स कर रहा, कोई मसला नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों में बिज़ी होते हैं, दे डोंट हैव टाइम। कुछ लोग ओपन नहीं होते, तो आप किसी और को पूछें, किसी और से बात करें, तो कोई ना कोई आपको गाइड करेगा। क्योंकि देखें, एट द एंड ऑफ द डे सारी चीज़ें अल्लाह के हाथ में ना, उसके इख्तियार में, और वो कहता है आप अपनी कोशिश करें। तो दैट्स ऑल व्हाट यू नीड टू डू। कोशिश में फिर बरकत भी है, बिल्कुल ऐसे ही। और ये तो आपने एक सक्सेस स्टोरी ज़रूर हमारे साथ शेयर की। आई एम श्योर दैट दिस पर्टिकुलर सेशन, because it's going to go on the internet, it's going to be there on the web, this definitely will end up helping numerous people as well. Inshallah, yes, we hope. And for that, sir, again, we're so grateful for your time. Thank you so much. And not only your time, you so generously and so selflessly shared your experiences that we're very grateful for that as well. Thank you so much जी। मैंने बस अपनी कोशिश की है कि चलें, जो मेरा एक्सपीरियंस और नॉलेज है, अगर उससे कोई कुछ सीख सकता है तो दैट्स ऑल व्हाट आई नीड। It was a pleasure having you and Same a here. pleasure talking to you as Thank well. you. Thank you so So much. ladies and gentlemen, as always, मुझे तो लगता है मैं बहुत कुछ सीखती हूँ हर सेशन के बाद, बट व्हाट इज़ ऑलवेज वेरी रीअश्योरिंग इज़ कि आप लोगों का जो फीडबैक आता है, योर कमेंट्स, योर मैसेजेस, उससे ये तसल्ली होती है कि हमने कुछ अच्छा काम किया, एंड दैट आवर यंगस्टर्स ऑल्सो गॉट टू लर्न समथिंग टुडे। एंड अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन, आई बिलीव दैट मिस्टर सलमान मुश्ताक कुरैशी हैज़ बीन सो generous that I'm sure all of us have learned a lot today. So with this, thank you very much for watching us. We'll be coming back again and again with other leading experts from different fields to talk to you about their experiences. So once again, all of us can learn a little more about life. Have a good day ahead.